Assalamu alaikum students. In today's lecture you will learn about the derivation of the energy of an orbit. You will also learn about the derivation of frequency and derivation of wave number. Now students, here the after the derivation of the radius as you have done earlier, if you remember, just recall it that we have considered a hydrogen atom is having a central nucleus having charge on it, that is Ze with the plus sign, while an electron, that is with the minus sign, which is moving in the orbit that is of radius r, which is having a uniform velocity and it is having a mass m, right? I think you should remember the values of charge as well as the mass of electron from the previous one lecture, right? And if not, just learn them well, right? Now here are the consideration that velocity v by which the electron is moving having mass m with the radius r, all these are your considerations. Now keep them in your minds before we derive for the energy. Right now total energy of the system is equal to the kinetic energy of the electron plus the potential energy of electron, or you can say it is the sum of the two energies, that is of kinetic energy and potential energy, right? Kinetic energy arises due to the motion of electron around the nucleus, while the potential energy arises due to the interaction between electron and that of the nucleus. It is actually the electrostatic force of attraction which is present in between the two oppositely charged bodies, right? Now here what we say, the potential energy of E or electron is given by means of the Coulomb's law. If you remember, that is K Q1 Q2 upon R is equal to, now here we have the two charges which are going to have the multiplication with each other, divided by R is the radius. Now if we place instead the two separate charges, that is Q1 for electron, so electron is having a negative charge on it, so represent this negative charge, right? While the nucleus which is having Ze charge on it with a plus sign, you can represent it, but it's not to mention here, divided by R. So the potential energy of electron can be given as minus k Ze square upon R, और अगर मैं यहाँ complete value mention कर दूँ of that of the Coulomb's attractive force की, तो मेरे पास आ जाएगा Ze square upon 4 pi epsilon naught R, right? और यही मैं आगे apply करूँगी in the equation, right? Now here we are going to start the derivation of energy of an electron in an orbit. Now this one is again, as I told you, that total energy of the system is equal to the sum of the kinetic and potential energies. Kinetic energy का formula आपको याद हो अगर, it is half mv square प्लस के साथ भी क्योंकि हम सम अप कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये जैसे मैंने पहले कहा, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय Ze square upon 4 pi epsilon naught R, right? Now here we have the two values, यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके तो माइनस आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा E टोटल इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ नॉट जो है वो छोटा सा छुप गया है, इसको आपने क्लियरली राइटिंग में ले लेना है when you are doing your work, right? Now here to find out the value of kinetic energy, now अब आपके पास में यहाँ पे ये छोटा सा ये derivation देखें जो last हमने radius of an atom से किया था from the previous one lecture. The two forces when they are equal and they are balancing each other, that is centrifugal force is equal to the centripetal force or the electrostatic force of attraction. तो ये आपके पास में जो वैल्यू mv स्क्वायर की आती है, दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर इज इक्वल टू Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R,
आर की एक साइड पे वैल्यू आपके पास में स्क्वायर के साथ में है, तो एक आर इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा. द लेफ्ट ओवर इज एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. इस वैल्यू को आपने प्लेस करना है इन दिस previous one equation, that is the sum of the kinetic energy and potential energy is equal to E total, जहां आप ऑलरेडी पुट कर चुके हैं वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो कि है माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एज इट इज मेंशन्ड हियर. Along with it you have to give 1 upon 2 multiplied by z square upon 4 pi epsilon naught r from the above value of mv square. आपके पास में ये वैल्यू कुछ टर्न हो जाती है लाइक दिस, दैट इज z square upon 8 pi epsilon naught r minus z square upon 4 pi epsilon naught r. अब इसमें से जो है वो एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद जो कॉमन फैक्टर है उसको बाहर निकाल लें. आपके पास आ जाता है z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r 1/2 माइनस 1. यहाँ पे आप इसका ज़रा एलसीएम ले लीजिए तो आपके पास वैल्यू आती है -1/2. सो ये जनाब आपके पास में जो लास्ट वन देखें टर्म ये आ जाता है ई n, or this is the energy of the nth orbit. Nth orbit can be any orbit, right? n की जगह 1 लिखा जा सकता है, 2 3 4 5 और whatever infinity तक हम जा सकते हैं, right जी. now minus z square upon 8 pi epsilon naught r, ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है. नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन आ गई माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. आर यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो पिछली वाली रेडियस की जो डेरिवेशंस थी उनमें से हम आर की वैल्यू यहाँ पे लेकर आएंगे 1 अपॉन आर की फॉर्म में और इसको यहाँ प्लेस किया है. दिस वन इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन आर. तो ये आपके पास में है z स्क्वायर पाई m ओवर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर. दिस वाज इक्वेशन 5 इन द प्रीवियस वन जो आपके पास में हमने डेरिवेशन की थी जिसमें हमने एंगुलर मोमेंटम लगा के तो ये r की वैल्यू उसमें से कैलकुलेट किया था, राइट. सो वही यहाँ पे दोबारा मेंशन करेंगे. ये आपको प्रॉपरली इसको लर्न करना होगा, राइट. आपके पास में nth ऑर्बिट एनर्जी आ जाती है माइनस आप जो सिस्टम आपके पास में जो कांस्टेंट्स आपके पास में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो रहे हैं वो कर दीजिए. तो लेफ्ट ओवर आपके पास में माइनस जेड स्क्वायर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर एंड a स्क्वायर. पाई ऊपर भी है और पाई नीचे भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. अब आप हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मेंशन कीजिए, z इज इक्वल टू 1. वो आप यहाँ प्लेस करोगे तो वैल्यू आपके पास में वही रहेगी. स्वाइस के लिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर आप लिखोगे तो वैल्यू आपके पास में 1 ही आएगी. सो ये आपके पास में आ जाएगी इक्वेशन कुछ ऐसे माइनस me4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर. नाउ यहाँ पे अगर आपके पास में यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, अगर हाइड्रोजन की जगह आपको हीलियम दिया गया है तो यहाँ पे z की जगह स्क्वायर 2 लिखा जाएगा और अगर लिथियम प्लस 2 है तो आपके पास में z की जगह 3 लिखा जाएगा, ठीक है. अब इसमें से जो आपके पास में चेंज हो सकता है जो वेरिएबल है उसको बाहर निकाल लीजिए, बाकी सब कांस्टेंट्स को एक साइड पे ले आइए, राइट. सो इक्वेशन टर्न्स लाइक दिस me4 upon 8 epsilon naught h square. h if you remember it is Planck's constant और n क्या है, n is the number of the orbit, right, जो कि चेंज हो सकता है. एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड फॉर फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और एनी वन. जब एनी वन के लिए कहेंगे तो हम कहेंगे nth ऑर्बिट, राइट. सो माइनस साइन के साथ में जो आपके पास वेरिएबल है वो 1 अपॉन n स्क्वायर है. जिस भी आप ऑर्बिट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो बाहर, m मैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, m कांस्टेंट है, वैल्यू 9.1 × 10⁻27 kgs है. इलेक्ट्रॉन के जो E जो है दैट इज चार्ज, वो भी फिक्स है आपके पास में. एप्सिलॉन नॉट
जो था वो आपके पास में था, परमिटिविटी कांस्टेंट वो भी आपके पास में फिक्स वैल्यू है, और एच प्लैंक कांस्टेंट उसकी वैल्यू भी फिक्स है, राइट। और इन सब कांस्टेंट्स को मिला के एक ही कांस्टेंट टोटल वैल्यू आती है जो कि पर मेंशन की गई है, दैट इज इक्वल टू -2.178 इंटू 10⁻19। ये वैल्यू आपके पास में जूल्स में आ जाएगी, राइट। नाउ दिस वैल्यू इज गिवन एज, अगर आप इस वैल्यू को याद कर लें तो आपको फिर जो है वो हर एक इंडिविजुअल जो है कांस्टेंट उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट रिमेंबर दिस वैल्यू, राइट। सो इट विल बी En is equal to -2.178 into 10⁻18 1/n² जूल्स। अब आप चाहें तो किसी भी ऑर्बिट का रेडियस, ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एन स्क्वायर में आप वैल्यू पुट कीजिए जो भी आपको ऑर्बिट लेना है, फर्स्ट ऑर्बिट तो 1² आ जाएगा, एंड सिमिलरली सो ऑन। तो इसको हम मेंशन कर लेते हैं वैल्यू ऑफ के से 2.178 × 10⁻18 को, तो इक्वेशन आपके पास में बन जाती है En is equal to -k/n²। के की वैल्यू आपको पता चल गई कि क्या है, और नेगेटिव आयन आपके पास में इंडिकेट कर रहा है दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीज्ड, क्योंकि उसको जो है वो अगेंस्ट इट्स विल जो है वो यहाँ पे इन द ऑर्बिट प्लेस किया गया है, उसमें से फ्री स्पेस में से बाहर, ठीक है जी, एक पर्टिकुलर फिक्स प्लेस में जो कि ऑर्बिट है। नाउ हियर वी हैव फॉर, अब वो था आपके पास में 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, और अगर हमें 1 मोल के लिए कैलकुलेट करना है तो इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.02 × 10⁻³ से, तो ये 1 मोल के लिए आ जाएगा। और अगर आपको आंसर चाहिए किलो जूल्स में, राइट, तो फिर आपको डिवाइड करना होगा वैल्यू को 1000 से। ये आपके पास में वैल्यू आ जाती है फॉर हाइड्रोजन, कि इसके फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो वैल्यू इज 1313.315 किलो जूल्स पर मोल, राइट। यही इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, कि इस इलेक्ट्रॉन को जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में रिजाइड कर रहा है, इसको यहाँ से एग्जिट कराने के लिए, इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, राइट। नाउ हियर द एनर्जीज ऑफ द डिफरेंट 1 ऑर्बिट्स आर गिवन, आप प्लेस करते जाएं, E1 की कैलकुलेट करनी है, E2 की कैलकुलेट करनी है, E3 की, व्हाटएवर जो भी आपको कैलकुलेट करनी है वो प्लेस करते जाइए, यू विल गेट योर डिजायर्ड वैल्यू। आप देखें यहाँ पे जो वैल्यूज आती चली जा रही हैं, एनर्जी इज ऑन इंक्रीज, ठीक है तो माइनस में, लेकिन माइनस को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें और वैल्यूज देखते चले जाएं, आपके पास नियर टू प्लस की तरफ आ रही है वैल्यू, तो एनर्जी इज ऑन इंक्रीज, राइट जी। ये आपके पास में जाता है किलो जूल्स पर मोल के लिए। तो फर्स्ट ऑर्बिट से अगर आपने इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको जो एनर्जी चाहिए वो है 1313.315 फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, एंड दिस इज कॉल्ड इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट। और ये आपके पास में कहलाती है जनाब ग्राउंड स्टेट, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिजाइड कर रहा है विदाउट एनी लॉस और गेन, राइट। और बाकी आपके पास में फर्दर अगर आप इसको सेकंड ऑर्बिट में मूव करें या थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ में, तो ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जीज हैं जो कि आपके पास में आ रही हैं सेकंड और थर्ड और ऑनवर्ड हायर 1 ऑर्बिट्स के लिए, तो हम इनको एक्साइटेड स्टेट्स कहेंगे, राइट। Now here we have the first energy level when n is equal to 1, as this is called the ground state of hydrogen atom. All the others are called the excited state. Excited state इसलिए कि इलेक्ट्रॉन को जंप करना है फ्रॉम फर्स्ट 1 लेवल से सेकंड लेवल में, तो इन दोनों एनर्जीज का जो डिफरेंस है वो उसको लेना पड़ेगा, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको चाहिए, रिक्वायर्ड है बाय द इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल। ये इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा, दैट इज E2 माइनस E1, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी हाई, राइट। सिमिलरली इफ इट हैज टू मूव फ्रॉम E1 टू E3 या E4 या E5 या फ्रॉम E2 टू E3, तो इसी तरह से एनर्जी डिफरेंसेस कैन बी कैलकुलेटेड,
कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अगर फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में जंप करना है तो ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो इसके अलावा, जो इस वक्त फर्स्ट ऑर्बिट में इसके पास है, इसके अलावा इसको लेनी होगी। आपको इसको हीट करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करेगा ये एनर्जी, या फिर सनलाइट से लेगा, तो फिर ये जंप करेगा टू द अपर। राइट जी। नाउ टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आपके पास में आ जाता है हाउ टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन emitted by an इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए कंसिडर कीजिए द इक्वेशन दैट इज E2 minus E1 is equal to delta E, that is equal to h nu। यहाँ लिख रही हूँ, this one is E2 minus E1 is equal to delta E is equal to h न्यू। जहाँ पे h जो है वो तो आपके पास में है प्लैंक्स कांस्टेंट, और जो आपके पास में न्यू है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव्स व्हिच आर पासिंग पर टाइम पर यूनिट लेंथ, दैट इज टर्म्ड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है फ्रीक्वेंसी की। और अब आ जाइए हाउ टू कैलकुलेट इट। इसके लिए मुझे एक ऑर्बिट की एनर्जी का तो पता है, दैट इज nth ऑर्बिट ले लें या कोई भी E1 अगर इसको समझ लें तो फिर क्या लिखोगे इसके लिए। नाउ हियर फॉर हाइड्रोजन यहाँ पे एक जनरल आपको दिया हुआ है Z के साथ में, दैट इज माइनस Z² E4m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m स्क्वायर 8 स्क्वायर। और अगर मैं कहूँ एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट N1 के लिए तो यहाँ पे नाइट जो n मैंने मेंशन किया है डिनोमिनेटर्स में, दैट इज ऑर्बिट कौन सा वाला, तो N1 में यहाँ पे शो करूँगी। ठीक है, और अगर मैं सेकेंड ऑर्बिट के लिए करूँगी तो E2 मेरे पास आ जाएगा जनाब, दैट इज सेकेंड ऑर्बिट के लिए। राइट, ये तो मैंने वैल्यूज लिख ली। अब नेक्स्ट मैंने एप्लीकेशन करनी है दैट E2 माइनस E1। रिमेंबर इट, E2 भी आपके पास माइनस साइन के साथ है और E1 भी आपके पास माइनस साथ में है, लेकिन माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके जो आपके पास ऑर्बिट 1 की जो एनर्जी है वो माइनस साइन के साथ की बजाय प्लस साइन में आ सकती है ना। ठीक है, सो इसको आप रीअरेंज कर लें इक्वेशन को, इसको प्लस साइन में ला के इसको बाहर ले आइए, आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। इनमें से कॉमन चीज़ों को भी बाहर निकाल लीजिए। कॉमन वन कौन कौन से आपके पास में कॉन्स्टेंट्स हैं? Z² E4m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 8 स्क्वायर, और लेफ्ट ओवर क्या बचा? 1 अपॉन n1 स्क्वायर। रिमेंबर इट, ये मैंने n1 स्क्वायर क्यों पहले लिखा, क्योंकि ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके ये आपके पास में प्लस आ जाएगा, जो कि मैं पहले रीअरेंज कर दिया इक्वेशन को, और हम पहले ले आए। ठीक है, माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर ये आपके पास में आ गया। अब अगर मैं z की वैल्यू यहाँ 1 मेंशन कर लूँ तो वंस अगेन ये मेरे पास एक फिक्स क्वांटिटी बेटे आ गई, जिसमें आई हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ दीज कांस्टेंट्स एंड देन आई कैन गेट अ फिक्स वन। एक टर्म मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। वैल्यू वंस अगेन जो मैंने पीछे एनर्जी डेरिवेशन से किया था दैट वाज 2.1 10 पर माइनस 18 जूल्स। डेल्टा ई इसके इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास, ये मैंने वैल्यू प्लेस कर दी। और अब रिलेशनशिप जैसे मैंने पहले आपको बताया, डेल्टा ई इज इक्वल टू द एच न्यू, के जो आपके पास में दो एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस आ रहा है, या जो दो रेडिएशन जो आपके पास में जो आ रही हैं उनमें जो डिफरेंस आपके पास में आता है डिपेंड्स अपॉन दैट ऑल्सो, इट्स द प्रोडक्ट ऑफ यू कैन से प्लैंक्स कांस्टेंट और द frequency, or you can also say the energy of radiation is directly proportional to the frequency of the radiation की equivalent होती है, right? So you can write it at h nu is equal to 2.18 10 per minus 18 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा जी, now here we have इक्वेशन जो प्रीवियस थी उसमें हम इसको प्लेस कर देते हैं वैल्यू को। तो me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, अब h स्क्वायर है यहाँ पे, तो अगर हम h को यहाँ से वहाँ मूव करते हैं टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी, तो मेरे पास यहाँ h क्यूब बन जाएगा।
ठीक है। और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी मेरे पास हर्ट्स में या साइकिल्स पर सेकेंड में। दिस इज द इक्वेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी। तो ये मेरे पास जनाब इक्वेशन आ गई। जब मैं एच क्यूब की वैल्यू लगाऊंगी तो 2.18 की जगह वैल्यू बन जाएगी 3.29 10 पावर 15, right? So place this value and you can calculate the frequency. Now the question is derive an equation for the radius and energy of nth orbit of hydrogen. So you have to learn it and then write it and then send it to me. I will give you marks for this assignment. Okay.